یہ 10 میں سے ہیں تیرے کیا ہے؟ کچھ چیزیں بہت تو وہ تھوڑا سا پیٹرن کو فالو کرو، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں پریکٹس کرنا پڑے گی، اس کے بغیر یہ معاملہ جو ہے نا نہیں حل ہو سکے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ مقصد ہے کہ ابھی یہ ٹیسٹ ایک شروع ہو گیا انشاءاللہ اب اس کو نا ریگولرلی جو ہے میں نے اب حصہ بنانا ہے اپنے ٹائم کا نا. کیونکہ آج بھی جیسے چلے وہ کچھ نہ بھی ہو، اگر یہ چیپٹر نمبر 3 کا آپ لوگ کر کے آئے، آج پڑھ کے آئے ہو؟ اچھا نہیں تو پھر جو ہے نا کنٹنجنٹ کا جو ہے نا تھا ہمارا چیپٹر نمبر 5 کا نا، اس کا دے دیتا ہوں آج 2 کوشچن، کیونکہ وہ تو بھی کل ہی ختم ہوا ہے نا ہمارا، تو وہ کم از کم سارے کا سارا فریش ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس سے پچھلے چیپٹر کا دے دیتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا فری کانسنٹ والے کا چیپٹر نمبر 4 کا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 5 پروویژن ہے، فراڈ ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہے، مسٹیک ہے، جو بھی ہے اس کا کوئی کوشچن ہے. تو یہ جو ہے نا پریکٹیکلی طور پر بھی اس طرح جب تک نہیں کریں گے نا، آپ کو اسی وقت ہوگا جب سمجھو بھی اس طرح کے انسین کوشچنس آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ بیٹا گھر جا کے پڑھو، اور جو بچے اب نہیں پڑھتے گھر جا کے پڑھنے کی عادت اگر نہیں بناؤ گے نا پھر کام خراب ہوگا. اور اب ہمیں دیکھیں نا آہستہ آہستہ کر کے سمجھ آتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے سمجھ آتی ہے کہ بچے اس میں فیل کیوں ہوتے ہیں. آپ لوگ جب نئے آتے ہیں پی آر سی میں جیسے آئے تھے تو آپ دیکھو کتنی اٹینڈنس ہوتی ہے. اب آپ 12 بچے ہو کلاس میں، اب وہ 12 بچوں میں سے دیکھو 3 یا 4 ریگولر ہیں. اب جو باقی 8 ہیں یا جتنا بھی آپ جا کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، میں اب کیا اس کو جوائن کرنا چاہیے تو میں مقصد کہ میں تو اسی چیز کے اوپر دیکھتا ہوں نا جو کہ ایک قسم کا ہے ایکسپیرینس کہ بچے پی آر سی میں پاس کیوں زیادہ ہوتے ہیں اور ادھر کیوں نہیں ہوتے. اس کا مین چیز اب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بچہ وہاں پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، نیا بچہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ خواہش ہوتی ہے اس کی، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ کیف تک دوسروں سے مل کے دوسروں بچوں کا آئیڈیا دے کے 2 مہینے پڑھو گے یہ ہو جائے گا، مہینہ پڑھو گے دیا آئے گا. آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے اور پھر اللہ نہ کرے اسی وجہ سے جاتا فیلور کا چانس دیکھیں کیف تک پہنچتا ہے. جا کے کیف تک تو بہت سارے بچے فیل ہی نہیں ہوتے. بہت اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، کلاس روم بھی ہوتا ہے، افیکٹو ماحول ہوتا ہے. کلاس کے اندر دیکھیں بچے ہوں گے تو ٹیچر بھی اتنا افیکٹو ایفیشنسی کے ساتھ کام کرے گا. اور اب 12 میں سے اگر 3 یا 4 آئیں گے تو ایفیشنسی میری مجھ سے جتنے زیادہ آپ لوگ کوشچن پوچھو گے نا، سوال کرو گے نا، میری پریکٹیکلی طور پہ ایسے سمجھو کہ ایفیشنسی اتنی زیادہ پھر تب ہوگی. کیونکہ میں بھی لازمی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیول کی تیاری کر کے ہوں گے یار بچے پڑھنے والے ہیں. اور جب میرا مقصد ہے کہ نہیں انٹرسٹ ہوگا تو پھر اللہ معاف کرے وہ پھر رزلٹ پھر دوسری طرف جانا شروع ہو جانا ہے. لیکن میں نے کھینچنا ہے اب تھوڑا سا، میں چاہتا ہوں کہ اب تھوڑا سا یہ جو ہے ایک 2 کوشچن ڈیلی بیسس پہ پریکٹیکل ہم نے یہ پریکٹس کے اندر حصہ بنا لینا ہمارا ایک ریگولر قسم کے. تو 5 دن 5 دن ابھی اچھا لگے برا لگے بچیاں آتی ہیں نا، میرا مقصد ان کو جو بھی فیل ہو میں اب اس کے اندر نہیں آؤں گا اس کے جانچے میں. ٹھیک ہے، ہم نے جو کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، وہ ریگولر طور پہ اوپر ٹائم سے پہلے بھی ختم کرنے والا معاملہ وہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارا.
और दूसरा इसके अंदर ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे ना, ठीक है टेस्ट अभी ना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह अगर साथ साथ लेंगे तो इस तरह तैयारी भी अच्छी होगी, जो पढ़ा जाना ये पढ़ते हैं ये भी अच्छा से पढ़ा जाएगा। यहाँ तो फिर प्लान करके चले ना कि पहले चैप्टर का फिर दूसरे चैप्टर, ताकि पता हो हमें क्या नहीं। मैं अब पिछले को नहीं ना करूँगा, मैं जो आज पढ़ना है ना उसका तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता हूँ ना मैं, इस तरह हो सकता है। देखिए ना जो आज हमने करना है उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल के दे दिया जाए, यहाँ जो हमने कल पढ़ा है उसका दे दिया जाए, क्योंकि कल जो किया है सपोज तो यही है ना कि आपने रात जाके उसको पढ़ा है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 को, तो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन 1-2 दिए जा सकते हैं ना आज, एक 2 से होगा, उससे ये होगा ना कम से कम ये है कि आप अपडेट रहोगे, आप डर और खौफ की वजह से घर जाके पढ़ोगे या सर ने कल इसका टेस्ट ले लेना है, ठीक है, या एक दिन पहले का ले लिया जाए, उस दिन का ज़रा थोड़ा सा इसलिए भी होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट को भी याद करना पड़ता है, चीज़ों को भी समझना भी पड़ता है ना, तो वो बेहतर है कि हम जो है एक दिन इसके अंदर आगे रख के चलें। अच्छा एनीवे, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट्स, ये इसके यानी कि 2 चैप्टर होंगे, इसलिए कॉन्टेक्स्ट अंदर 1 और 2 का इसके अंदर हवाला होगा। अच्छा इसके अंदर क्या है जी, कॉन्टेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा हमें इस चैप्टर के अंदर कि कॉन्टेक्स्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना कॉन्टेक्स्ट की कैसी है। नंबर 2 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या है। नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट विच नीड टू बी परफॉर्म्ड है, और 4 इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे पास। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट विच मस्ट बी परफॉर्म्ड कि हर हाल में जो भी हो जाए इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ये हमारी ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है सेक्शन 37 के तहत, कि जब भी 2 पार्टीज आपस के अंदर कॉन्टेक्ट करती हैं तो उसके अंदर जो अगर वो ऑब्लिगेशन सेक्शन 37 के नीचे आएगा तो मस्ट बी परफॉर्म्ड होगा। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दोनों देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिपेंस्ड with or excused under the provision of this act or of any other law, ठीक है, unless कि उसके ऊपर कोई लॉ लगता हो या कोई वजह बन गई हो, ठीक है, डिस्पेंस, तो इस तरह का मसला आप नहीं परफॉर्म कर सकते, किसी की जैसे डेथ हो जाती है बाज़ दफ़ा, अब अगर एक बंदे ने दूसरे से प्रॉमिस किया और एक बंदे की डेथ होगी तो फिर उसका क्या लीगल स्टेटस होगा। अगर बाज़ दफ़ा देखें लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो देन व्हाट, बस ये यानी कि इसके अंदर से ये देखना है आपने हमने कि क्या इसके अंदर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात बन रही है या नहीं बन रही, या उसके बगैर ही हमारा ये काम जो है ख़त्म हो रहा है। अच्छा इसके अंदर टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा जी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो गई, यानी कि परफॉर्मेंस के अंदर आपने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये एक तो सेक्शन 37 है ये चीज़ है, दूसरा है कि आपने देखना है आया ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस में व्हेन द प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस in accordance with the terms of the contract and it is accepted by the promisee, it is called the actual performance, ठीक है, यानी कि accordance with the terms of the contract, एक ने भेजा दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको हम कहेंगे ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। अब क्या है, फॉर एग्जांपल कह रहा है आजम ने कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर अ बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 November, क्या 500 बेल्स ऑफ अ कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी भी डिसाइड हो गई, 500 बेल्स भी डिसाइड हो गई हैं और टाइम भी डिसाइड हो गया कि आपको 1 November को आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आजम ब्रॉट द कॉटन टू द रिक्विजिट क्वालिटी टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है, 1 November को उस टाइम के ऊपर जो प्रॉमिस था जो लिखा हुआ था गुड्स डिलीवर हो गई, वो डिलीवरी ले ली गई, वसूल कर दी। दिस इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस जिसे हम कहते हैं ना, उसको एक्सेप्ट किया गया और उसके अगेन उस तरह काम किया गया, परफॉर्म किया गया, ठीक है, जिस तरह का प्रॉमिस था उस तरह इसको डिलीवर कर दिया गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अच्छा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सेक्शन 38 के नीचे आ जाएगी। व्हेन द प्रोमिसर has made an offer of performance but the offer of performance of a promiser is not accepted by the promisee, it is called attempted performance, कि ए ने जो प्रॉमिस किया या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की वो बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आप कहते हैं मैं 10 बजे आऊँगा, मैं कहता नहीं 10 बजे ना आना, तो मैंने आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। परफॉर्मेंस अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो नोन एज ए टेंडर और ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस, इसको हम टेंडर भी कहते हैं,
टेंडर परफॉर्मेंस भी कहते हैं और इसको ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस भी कहते हैं. क्या मतलब है? अगेन फॉर एग्जांपल कह रहा है आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1st of November 500 bales of a cotton of a particular quality. सेम यानी कि Azam brought the cotton to the requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hours and the barber refused to take the delivery of goods. कि उसने तो ए ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, ठीक है, लेकिन बी ने उसके अंदर रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसकी बात को. अच्छा, इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बिकॉज आजम हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. आजम ने तो वो कर लिया जो उसे करना चाहिए, बिल्कुल वो इसके अंदर सू करेगा. तो जो कंपनसेशन होगी जो उसका, अगर तो कंपनसेशन कोई रिटन फॉर्म के अंदर लिखी होगी तो फिर उसके अंदर मिलेगी ना. देखिए कॉन्ट्रैक्ट लर्न करने का, हाँ बेसिकली लॉ आपको पढ़ाने का मकसद ये तो नहीं है कि हमने आपको लॉयर बनाना है. इसका पढ़ाने का मकसद तो ये है कि जब आप किसी के दरमियान बैठ के कॉन्ट्रैक्ट लिखो, किसी के बिहाफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, ये सारी चीज़ें आपके जहन में हों कि यार वो आ तो गया है लेकिन अब उसकी बात को नहीं माना जा रहा. अब अगर उसकी बात को नहीं माना जा रहा तो फिर उसका हल और सोल्यूशन क्या निकाला जाए. हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है, अच्छा जी. तो फिर इसको जो है ना फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करेंगे. एक्चुअल परफॉर्मेंस जो परफॉर्म होगी और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वो जो परफॉर्मेंस ना हो सकी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी, यानी कि पार्टी बी हमारी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया जब वो लेके वहां पर. या देखें इसके अंदर एक और भी तो कंडीशन हो सकती है ना, इसके अंदर बी भी अगर खुल के आ जाता तो किसी किस्म की बदमजगी नहीं होती थी. वो कहता यार 1 नवंबर को या 5 नवंबर को लेके आए, हो सकता था ना ये. यानी कि ये आप अगर उसने लेनी है तो, अगर उसने नहीं लेनी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता. तो लाजमी बात है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने इन चीज़ों को गौर से देखना. बेटा पहले ये चैप्टर 6 कर लें, शुरू किया हुआ हमने, और इसके बाद फिर अगर ये डिस्कस करना चाहते तो डिस्कस भी करेंगे. कल आपने चैप्टर नंबर 5 अच्छे तरीके से पढ़ के मुकम्मल किया, पढ़ा था ना घर जाके जो हमने इधर पढ़ा है, ठीक है. अच्छा जी, अब पहला था बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी बेसिकली हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस को. परफॉर्मेंस क्या है जनाब कि जब पार्टी ए और बी के दरमियान जो कंडीशंस लिखी गई हैं उनके मुताबिक आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर कर दिया, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस. अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था जिस टाइम के ऊपर जितनी क्वांटिटी के अंदर वो माल आपने उस टाइम उस दिन उतनी क्वांटिटी में डिलीवर कर दिया, और जो बी पार्टी थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपको लिख के दे दिया कि जनाब ये मेरे पास पहुंच गया होया, ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी. और जो अटेम्प्टेड अपनी सॉरी जो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है ये सेक्शन 38 के नीचे आएगी, और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी आएगी सेक्शन 37 के नीचे. अच्छा, 38 में क्या होगा कि जो ए था उसने अपना पूरा प्रॉमिस फुलफिल किया, लेकिन जो प्रॉमिसी था उसने फुलफिल नहीं किया. उसने 1 नवंबर को जब उसके पास वो माल पहुंचा उसने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि नहीं जनाब ये मैं आज नहीं ले सकता. ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्रीच की कॉन्ट्रैक्ट की वो पार्टी बी ने की. तो अगर कोई ऐसी इस तरह की कोई आपके सामने आता है तो इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का नाम देते हैं, और सेक्शन 38 इसके ऊपर लगता है. क्लियर? सेक्शन 37 एक्चुअल और 38 आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अच्छा जी, आगे चलते हैं. असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए सेक्शन 38 के अंदर की भी. An offer of a performance is valid if it fulfills the following conditions. कौन सी? It must be unconditional. Number 2, it must be made at a proper time. Number 3, it must be made at a proper place. Number 4, it must be made under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity to ascertaining that the person by whom it is made is able to willing there and they then to do the whole of what he is bound by his promise to do. क्या? अगर ए आ रहा है तो इसके अंदर ए की कंडीशन अपनी पूरी होगी और बी उसको एक्सेप्ट करे, हाँ भी इतने बजे मैं वहां पे मौजूद मिलूंगा और मैं आपको इसको रिसीव कर लूंगा आपकी गुड्स को. तो ये इसको हम ये हमारी 4th एसेंशियल होगी इसके अंदर. 5th क्या है? इफ द ऑफर is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity to seeing that the
thing offered is the thing that the promiser is bound by his promise to deliver, कि वो चीज़ वही है जो उसने प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का। तो ये आपका पांचवा एसेंशियल आ जाएगा। यही पांचवें एसेंशियल कल वाले क्वेश्चन के अंदर एक समझते, अगर आप इसी तरीके से ये लिख देते, वैसे तो अगर आप बुक का उसको कंसीडर करें तो 6, 7, 8 एसेंशियल बनते। चैप्टर नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन आपने हल किया था तकरीबन इसी तरह से ये, तो ये एक किस्म का बार बार ही आएंगे। एक दफ़ा आप इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आप लिखने वो सारे के सारे पढ़ेंगे। अगर आप इसमें से 3 लिख देती हैं या 4 लिख देती हैं, इसको मुकम्मल नहीं करेंगे उतने आपके नंबर कट जाएंगे। जी कितने? 3 ही बताने? अच्छा, मैं ज़रा फिर उसको कंसिडर कर लेता हूँ। अच्छा, कि 3 या ऑल? अच्छा, चले उसको बाहर देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं असेंशियल के लिए जो हमारी है, यानी कि पूरे के पूरे पांचों असेंशियल किस चीज के ऊपर पूरा उतरते हैं। अब एग्जांपल देखें। अनम हु इज अ डेबिटर ऑफ एबीसी कंपनी offers to pay the amount due if ABC Limited also allows her 500 shares at par value. It is not a valid tender of money due to condition specified by Anam. अब इसके अंदर मेरा मकसद है कि अनम ने किसी के पैसे देने और उसने उसके साथ एक कंडीशन अटैच कर दी है पैसे देते हुए कि मैं आपके पैसे दे दूंगी, इज ड्यू इफ ABC Limited also allowed her a share 500 शेयर्स एट पार वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना। लेकिन जब हम शेयर्स को इशू करते हैं ना, जिस वक्त शेयर को इशू किया जाता है उस वैल्यू को हम पार वैल्यू कहते हैं। अब उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 साल बाद शेयर का क्या होता है, उसकी प्राइस क्या चली जाती है बेटा? 99% उसकी प्राइस हाई चली जाती है। आप मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, जब ट्रेड होती रहती है, परफॉर्मेंस कंपनी की हो रही है, उसकी शेयर प्राइस आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। अब देखें वो क्या शर्त कंडीशन लगा रही है कि वो जो सस्ती कीमत थी आप उसके ऊपर मुझे शेयर देंगे 500, मैं आपको पैसे दे दूंगी वापस। भाई क्यों? ठीक है, अब इस तरह की तो वो कंडीशन इसके अंदर नहीं लगनी चाहिए थी ना। बहरहाल एनीवे एग्जांपल, अगली एग्जांपल है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आप समझ रहे इट मस्ट बी अनकंडीशनल। क्या ये अनकंडीशनल है? कंडीशनल है। इसके अंदर कंडीशन कर दिए तो ये क्या हुआ, ये एसेंशियल परफॉर्मेंस का पूरा नहीं ना हो रहा बेटा, तो ये वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही बेटा जो नहीं ये अवॉइड हो गया यहाँ पे। अच्छा, अगली एग्जांपल के अंदर आते हैं। वो है जी कि अदील ऑर्डर्ड अ केक फ्रॉम शंग्रीला बेकर्स फॉर हिज डॉटर्स बर्थडे ऑन 17th of August. Shangri-La Bakers brought the cake on 15th of August for delivery. Adil is not bound to accept the cake as the tender is not made at a proper time. ठीक है जी, ये कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे बिफोर द टाइम आ गया तो क्या हुआ, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और स्पेसिफिकली केक, मेरा मकसद चलो को गोल्ड चेन हो, कोई इस तरह की चीज हो, कोई कपड़े हो, तो वो तो एक और चीज हो गई। अब केक तो अब आप भी माशाल्लाह खाते होंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है कि अगर सुबह वाला केक आपको शाम मिले ना तो उसका जायका चेंज हो जाता है। ये तो फ्रेश ही जब आप लेंगे तो उसी वक्त मामला होगा, तो ये इसके अंदर ये अवॉइड हो गया। अच्छा, अगली एग्जांपल है कि आजम इज टेनेंट ऑफ बाबर। बाबर का वो समझे कि मकान में किराएदार है। ही ऑफर्स हिम रेंट एट अ मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी के ऊपर ऑफर किया रेंट। बाबर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज द टेंडर इज नॉट मेड एट अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, अब रेंट का हमें नहीं पता कितना है, हो सकता है कि 5 लाख रुपये रेंट हो। अब टेंडर के अंदर घर तो नहीं लिखा हुआ बेटा, या कोई प्लाट तो नहीं लिखा हुआ, हो सकता है फैक्ट्री का रेंट हो। अब शादी के ऊपर मिलने यार रेंट फाड़नी यार, अब ये तो कोई बात नहीं, हो सकता 10 लाख रुपए हो बेटा, तो फिर इसके अंदर ये भी आप जो है ना इसके अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अगला आ जाता है वकास इज द डेबिटर ऑफ बाबर. Waqas offers to pay in installments to Babar while the contract stipulated payment in full. It is not a valid tender as it not for the whole obligation is agreed. ठीक है, जितनी शराइत उसको नहीं थी कि वो कहता मैं किस्तों में दे दूंगा, लेकिन वहाँ जो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्टर है वही आपने लमसम ही देना है, पूरे का पूरा इकट्ठा देना है, तो ये भी आपका वैलिड नहीं होगा. अगली एग्जाम्पल है कि Kamran delivered the goods to Waqas at 2 PM as agreed but did not allow him any time for inspection of a goods. It is not a valid tender again. क्योंकि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो आपको एक मेरा उसको गिनने का, उसको चेक करने का, तो उसके अंदर टाइम शामिल हो ना. 2 बजे उतार के आज 100 हो गए, गिनो जी, आप पढ़ो जी, लिखो, साइन करो, मैंने दे दो, मैंने कहीं और जाना है. अब इस तरह तो नहीं होता कि बाकायदा मेरा मकसद है कि कोई हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी बहुत सारी चीज़ होती है, ऑनलाइन चीज़ होती है.
फ्लॉप क्यों है? फ्लॉप ये इस वजह से है ना कि ये हमें टाइम नहीं देते कि हम गुड्स को चेक कर लें, और इसके अंदर ही फ्रॉड पना होता है। मेरा मतलब अगर वो आपको ये लिखे, और बहुत सारी कंपनी आ रही हैं इसके ऊपर वो कहते हैं पे आफ्टर चेकिंग द गुड्स, कि आप पहले चेक कर लें उसके बाद पे कर दें, बस ठीक है। अब ये तो एक तरीका कार और अच्छा तरीका कार है, लेकिन अगर आपको वो टाइम ही ना दें और नहीं देते टाइम, जल्दी करें पैसे लेके आए, अब पैसे लेके आपने बाद में चेक का वो तो चला गया, उसने कौन से कोई वापस आना है? आपकी पेमेंट हो चुकी है, और पेमेंट होने के बाद कौन वापस करता है? अच्छी मेरे साथ पिछले दिनों ये फ्रॉड हो गया। क्या हुआ कि मिसेज की आ रही थी अपनी एनिवर्सरी हमारी, तो मैंने वो 2 चीज़ें मंगवाई ऑनलाइन। अब वो चीज़ें 2 थी, पैकेट एक के अंदर था, उसकी 5000 कीमत थी। जैसे आए 5000 में, अच्छा मैं घर पे था ही नहीं, होता तो मैं शायद इसको चेक भी कर लेता। अच्छा क्या था, वो बच्ची को पैसे दे के चला गया मैं, तो मैं बाहर निकला हुआ था, बच्चों को छोड़ने गया था, शायद वो आए और उसने वो 5000 पकड़ाया और पैकेट पकड़ लिया। अब मैं वापस आया तो कहते जी अंकल ये पड़ा, मैं चेक किया तो उसके अंदर एक चीज़ थी, एक थी नहीं। अब मैंने उन्हें फ़ोन किया 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 दफ़ा, हाँ जी हो जाएगा, ये होगा, तस्वीर भेजें, ये करें वो करें, सारी चीज़ें निकल के भेज दी, सब कुछ नहीं। इस चीज़ को महीना हो गया। अब बस मैं फिर शुरू हो गया हूँ वेबसाइट के ऊपर। देखा मेरा इतना तो राइट बनता है ना कि अगर उन्होंने मेरे साथ 2 नंबरी की है, बेईमानी की, तो मैं उनके अगेंस्ट लिखूँ कि भाई चोर है, तो बस फिर ठीक है। मैं अब और तो कोई मेरे पास नहीं है। अब यही चीज़ आप लोगों के साथ यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि कम से कम इनफ टाइम आपको गुड्स को चेक करने का देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, आगे जी कि अकमल कॉन्टेक्ट टू डिलीवर टू बासित एट हिज वेयर हाउस। कॉन्टेक्ट हुआ बासित को वेयर हाउस के ऊपर डिलीवर करना है ऑन द 1 March 21। 100 bales of a cotton of a particular quality. In order to make a valid offer of a performance, Akmal must bring the cotton to Basit's warehouse on the appointed day. Under such circumstances, the Basit may have a reasonable opportunity of satisfy himself that the thing offered is cotton of a quality contact for and that there are 100 bales. ठीक है। अब इसके अंदर अकमल ने अगर कोई प्रॉमिस किया है, ये समझो प्रॉमिस करने वाले की तरफ से, पार्टी ए की तरफ से, कि एक तो वो ऑन टाइम पहुंचे, ठीक है, नंबर 2 वो 100 पूरे के पूरे हों, नंबर 3 उसकी जो क्वालिटी मेंशन की हुई, जो बात की, वो वही क्वालिटी हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज ना हो, अगर आप इस ऑफर को मुकम्मल तौर पे वैलिड करना चाहते। एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, उसके साथ जो जो कंडीशन लिखी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हैं बेटा, वो सबकी कोई ना कोई अहमियत है, वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप उनमें से किसी को भी फुलफिल नहीं करते तो। एग्जाम्पल 9 है कि अशरफ ओज 15,000 टू रिजवान एंड तनवीर जॉइंटली। रिजवान और तनवीर को 15,000 देना है। ही ऑफर टू पे द अमाउंट टू तनवीर ऑन अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हु रिफ्यूज टू रिसीव इट। इट शैल बी कंसिडर वैलिड टेंडर ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय अशरफ। हाँ जी, कि ये वैलिड टेंडर होगा। हुआ क्या कि उसने 15,000 पे देने रिजवान और तनवीर को जॉइंटली, इकट्ठे उससे लिए होंगे। ये ऑफर टू पे अमाउंट टू तनवीर, तनवीर को उसने कम पैसे दे दूंगा ऑन ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हु रिफ्यूज टू रिसीव, जो कि उसने अपने रिफ्यूज कर दिया तनवीर ने। इट शैल बी कंसिडर वैलिड टेंडर ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय अशरफ। वैलिड टेंडर तो हो गया, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फिर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये? नहीं, अगेन दोनों के ना पैसे। अच्छा, अशरफ ओज 15,000 रिजवान एंड तनवीर जॉइंटली। नहीं अभी दिए नहीं ना, यही तो चीज है समझने की ना बेटा। पॉइंट इसमें ये क्या है, ही ऑफर्ड टू पे द अमाउंट टू तनवीर ऑन अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हु रिफ्यूज टू रिसीव इट। उसने ऑफर्ड किया कि मैं कल आपके पास 2 बजे लेके पैसे आ जाऊंगा, उसने रिफ्यूज कर दिया कि रिसीव इट। इट शैल बी कंसिडर्ड वैलिड टेंडर ऑफ अ परफॉर्मेंस बाय अशरफ। अब अशरफ की तरफ से ठीक है, वैलिड टेंडर हो गया, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब मुकम्मल होता है? जब दोनों तरफ से होगी तो फिर वो एक्सेप्टेड होगी ना बेटा। अगर दोनों तरफ से नहीं होती, वन साइडेड होगी, तो वो तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगी ना। तो फिर उसके अंदर बस ठीक है, फिर फोन पे रब्ता किया जाता है, दूसरी कोई ना कोई इसके अंदर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस इसके अंदर वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, ये उसका केस है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला केस नहीं था। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ अ परफॉर्मेंस सेक्शन 38। अब रिफ्यूज किया ना उसने, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका क्या इफेक्ट है?
where a promisor has made a valid offer of a performance to the promisee and the offer has not been accepted, the promisor is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his rights of compensation and recession under the contract. ठीक है, क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि मिसाल, नईम properly tendered goods to Asim in accordance with the terms of a contract, but Asim refused to accept the goods. Naeem does not have to deliver goods later and can sue Asim for damages caused by non-acceptance of goods. अब इसके अंदर सू किया जा सकता है, ठीक है, अब इसके अंदर सू किया जा सकता है। क्यों? अब जिसने मिसाल के बाद नईम ने प्रॉपरली जो भी उनकी आपस के अंदर हुआ, एक मायदा तय हुआ, उसके मुताबिक उस टाइम पे उस दिन उस क्वांटिटी के अंदर चीजें लेके पहुंच गया। अच्छा, अब वहां पे जो आसिम था उसने उसको नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आज नहीं मैंने चाहिए, कल लेके आया, ठीक है। तो ये इस फिर कंडीशन के अंदर इसको सू किया जा सकता है, ठीक है। अब सू करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे वैलिड है और डैमेजेस के लिए सू किया जा सकता है। अच्छा जी, ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स, ये सेक्शन 37 के अंदर, प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर। अब इसके अंदर है कि जिस बंदे ने प्रॉमिस किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा? हाँ, वो उन्हें फिर वो कंडीशंस, वो सारा कुछ उस प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या है जी? अजमल promises to deliver goods to Bano on a certain day on payment of 1,000. Ajmal dies before that day. Ajmal's representative are bound to deliver the goods to Bano and Bano is bound to pay 1,000 to the Ajmal's representatives. ठीक है, अब जहाँ बाउंड होगा इसका मतलब ये मस्ट है, बाउंड का लफ्ज़ मस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगली एग्जाम्पल है, अनवर प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ अ सलीम बाय अ सर्टेन डे, उस दिन तक, एट अ सर्टेन प्राइस, उस प्राइस के ऊपर। अनवर डाइज बिफोर द डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ईदर बाय अनवर्स रिप्रेजेंटेटिव और बाय सलीम। क्यों? क्योंकि अब जैसे पिक्चर अनवर का नाम होता था वैसे तो उसके घर वाले खरीद लाते थे, तो ये सिर्फ उसका ही आर्ट था। हाँ, अब उसके, अब अगर कोई इस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी एक बंदे के साथ हुआ है जो कि उसने परफॉर्म ही खुद करना है, उसके अलावा उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके अंदर दोनों पार्टी में कोई किसी को सू भी नहीं कर सकता। अब जिस बंदे ने एक्चुअल पिक्चर बनाई उसकी डेथ हो गई, तो अब जो कीमत थी उसको फलान दिन देना था, अब वो अगर सू भी करे तो क्या कर सकता है उसका? वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को सू नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका एक्ट जो है ना उसने खुद करना था। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, ये सेक्शन 39 के अंदर है। अगर सारे का सारा ही परफॉर्म ना हो तो फिर क्या होगा? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by word or conduct his willingness in its continuance. Again, क्या है कि आसमा, a singer enters into contract with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months. अगले 2 महीनों के लिए 2 दिन हर हफ्ते जाके वो गाना गाएगी। And Babar engaged to pay 100 for each night's performance. On the 6th night, ठीक है, यानी कि 2 हफ्ते हो गए, तीसरे हफ्ते की 6ठी नाइट में आसमा willfully absent herself from the theatre. Babar is at liberty to put an end to the contract. ठीक है, अगर वो नहीं टर्न अप हुई उस दिन 6ठी नाइट के ऊपर, तो अगर बाबर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। यानी कि बाबर की मर्जी है कि इसको अगर कंटिन्यू करना चाहता है सो बी इट, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये होगा रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म आप प्रॉमिस होली। अगर आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते तो दूसरी पार्टी बेटा उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकती है आपके कंट्रोल को, और आप इसे किसी भी अदालत के अंदर नहीं लेके जा सकते। Asma singer enters into contract with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights every week during the next 2 months, and the Babar engaged to pay her at the rate of 100 for each night. On the 6th night, Asma willfully absent herself with the assent of a Babar. ठीक है जी,
आसमा सिंग्स ऑन द 7th night. एहसन बाबर पर उसे बता दिया, फ़ोन कर दिया, उसकी मेरा मकसद जो मालिक था उसे पता लग गया था, उसे बता दिया गया था, ठीक है. आसमा सिंग्स ऑन द 7th night. बाबर हैज सिग्निफाइड हिज acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end to it, but is entitled to compensation for damage sustained by him through Asma's failure to sing on the 6th night. ठीक है जी. अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकेगा. अब बाबर इस कंडीशन में कि उसने आके 7वीं रात वो आ गई और उसने वो गाना किया, परफॉर्मेंस कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकेगा. हाँ, जो 6ठी नाइट आके उसने परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से अगर बाबर को कोई नुकसान हुआ है तो उसको सू कर सकता है, ठीक है. वो उसको सू कर, लेकिन अगेन फिर इसको साबित करना इतना आसान नहीं होता इन चीज़ों को कि उसी एक की वजह से ही मेरी जो है ना, मेरा मकसद है कि मेरी उस रात कोई भी नहीं आया या कोई नहीं आया, तो लोग आए हुए थे. मेरा मतलब ये तो बार और पब का चक्कर होता है, ये तो वैसे ही खाने पीने का चक्कर होता है. अगर एक सिंगर नहीं आया तो उसकी जगह वो दूसरा सिंगर हो जाएगा. कोई इतनी बड़ी एफिलिएशन है तो जो बड़े सिंगर से बेटा वो तो फिर मेरा मतलब वो बार और पब में तो नहीं लगाते, वो तो अपना कॉन्सर्ट करते हैं, वो लाखों की टिकट उनकी बिकती है, लाखों टिकटें बिकती हैं. हाँ, अगर उसके अंदर नुकसान हो जाए तो वो फिर जिन्होंने वो कॉन्सर्ट अरेंज करना होता है वो उनको फिर सू करते हैं कि भाई हमारी इतनी टिकटें बिक गई थी, इतने लोग आए थे, आप नहीं आए, क्या मसला बना. और वो आएंगे क्योंकि देखो उनकी भी तो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, पब्लिक पे डिपेंड करती है. पब्लिक उनको लाइक करके आते हैं तो वो तो पब्लिक उनसे हेट करेगी फिर. अच्छा जी, एनीवे यहां तक कुछ क्लियर हुआ बेटा चीजें? Yes, अच्छा जी. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जरा. इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द मासूम एंड मुबारक, Masoom has offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1st of March 15. Under the provision of the Contract Act 1872, advise Masoom about the conditions which must be satisfied for constituting a valid offer of a performance. अब आपने मासूम को बताना है, कंडीशंस बता दें कि वो मस्ट जिनको ओबे करे, ठीक है, ताकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहे. In order to constitute a valid offer, Masoom must fulfill the following condition. The offer must be unconditional. Number 2, it must be made at a proper time and a place and under such circumstances that Mubarak may have to reasonable opportunity of ascertaining the Masoom is able and willing there and then to deliver the 300 Rolex watches. ठीक है, ये भी इसके अंदर एक essential है और condition है. 3, Mubarak the promisee must have a reasonable opportunity of satisfying himself that the watches offered are the Rolex watches and at 300 in numbers which Masoom the promiser was bound to his promise to the deliver. कि ऑन टाइम पहुंच गया और जो दूसरी पार्टी उसके पास टाइम था, उसने घड़ियों को चेक भी कर दिया, घड़ियों को गिन भी लिया. तो ये एक मुकम्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कंडीशन है ताकि ये पूरे का पूरा जो हमारा परफॉर्मेंस है ये वैलिड हो जाए. तो उसके लिए इन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है तीनों को. अच्छा जी, दूसरा है महबूब. अ प्रोमिसर एंड सहूलत, अ प्रोमिसी एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सहूलत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम. ब्रीफली स्टेट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ महबूब अगेंस्ट सच रिफ्यूजल. Also state the essential of a valid offer of performance under the provision of Contract Act 1872. अच्छा जी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी महबूब की? महबूब वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ही विल नॉट लूज हिज राइट्स टू क्लेम डैमेजेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर इंस्टेंस, ही विल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अवॉइडेबल एट हिज ऑप्शन. Avoidable it is option. In case of a performance by Sahulat on Mehboob's demand, Mehboob will be responsible to perform his promise. Essential वही तीन दोबारा बेटा, must be unconditional हो, must be made proper time or place हो, under such circumstances that the person to whom is made may have a reasonable opportunity कि उसको वो चेक भी कर ले, उसको गिन भी ले. The offer is on if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, the promisee must have reasonable opportunity seeing that the thing offered is the thing which the promiser has promised to deliver. वही चीजें हैं जो इसने भेजी बेटा. Offer of one of the several joined themselves are the same legal consequences to offer of the all of them. तकरीबन उसी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं. इतने टेंशन ना ले, इतना ही है, इससे नहीं बढ़ते बेटा. तो बताने का मकसद ये है कि देखिए
اسی طرح کے کوشچن اسی طرح کی ایگزامپل بیٹا. یہ بھی میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ سلائڈ شیئر کی ہیں. اگر آپ اس کے 3 یا 4 سلائڈ کو پہلے کو پڑھ لو گے نا, یہ جتنا ہم نے پڑھا یہ سارے کا سارا آپ کے پاس وہ سمرائز فارم کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اگین میں اسی پریکٹس کو بیٹا جو ہم نے کل کی تھی اس کو میں کنٹینیو کروں گا. آپ ایک ایک پیج نکالیں. اب میں آپ کو چیپٹر نمبر 5 جو ہم نے کل ختم کیا تھا نا اس کے میں آپ کو 2 سوال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو بس آگے ہونا ہے نا, فار ایگزامپل کے طور پہ اب 1-2 چیپٹر جو مس ہو گئے ان کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن ہم جو ریگولرلی طور پہ پڑھیں جتنا نہیں 5 منٹ دے دو, ایک آدھا سوال تو کرو, زیادہ نہ کرو, ابھی تو ٹائم ہے ویسے. سر آپ ایسے پوچھ لیں یا لکھنا والا رہتے ہیں, آپ ایسے اورل پوچھیں. اورل کوئی فائدہ ہی نہیں نا. اورل کا تو بیسیکلی اب ہمیں تقریباً اتنی کلاسز ہو گئی ہیں نا, اب آپ کو جو اورل تو جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو پتا ہوتا ہے. آپ نے اگر ایک چیز آپ کی تھوڑی سمجھ میں آئے گی, انہوں نے آپ کی ہیلپ کر دی, اس نے ہیلپ کر دی, نہیں بتا دینا, تو اورل کا آپ کو بینیفٹ ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے. اب صرف اور صرف ایک ہی بینیفٹ ہے, اور اس کا یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی کل آپ پڑھ کے آئے. نہیں اور ایک کرنے زیادہ نہیں کرتے تو دوسرے چیپٹر میں کلاس میں ٹیسٹ ہے آپ. چلو میں بہت لمبا نہیں کرتا, میں بالکل 5 میں کیا صرف 5 منٹ ایک یعنی وہ 18-20 منٹ ٹائم تو بہت پڑا ہوا ہے. وہ کون سے سر کا ٹیسٹ ہے؟ سرفران کا ہے نا, تو سرفران کا ٹائم لینا ریوائز کرنے کے لیے. انہوں نے کہا سر 15 منٹ دیں اپنے ٹائم میں سے تاکہ ہم اس کو ریوائز کر لیں. ایسے ہونا چاہیے نا بیٹا, ویسے کہ نہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب جو کل تو چیپٹر نمبر 5 کا نہیں لوگا, کل میں نے انفارم کیا چیپٹر نمبر 3 کا کہا تھا نا آپ کو. 3-5 پھر 3 کا لے لوں ابھی. اب نہ یہ نہیں نا بیٹا, اصل میں دیکھیں وہ کام ٹھیک نہیں نہ ہو رہا ہمارا کہ میں نہیں کافی ٹائم یہاں پہ پرومس کریں گے کل سے لے کے ڈیلی ٹیسٹ والا کام نہ ہو. میرا مقصد آج جتنا پڑھا آج جو پڑھا ہے آپ نے بھیجا کہ پڑھنا ہے, میں اس کی ٹیسٹ کی بات کر اب میں جو پڑھا تھا وہ اس کی بات کر رہا ہوں, میں صرف یہی سوال دے رہا ہوں. کل آپ نے پڑھا یا نہیں ایمانداری سے؟ چلے میں اورل پوچھ لیتا ہوں. آج اورل ہے, کل سے لے کے اورل نہیں ہوگا, لیکن سمجھے نا. ہاں بیٹا کل سے اورل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. آج میں چلو آپ کی بات کو کر رہا ہوں, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے سرفران سے کہنا سر جی تمہاری مہربانی ہے آپ ہمیں ذرا 2 منٹ دیں. ان کے ٹائم میں سے لے نا بیٹا, پھر پتہ چلے کہ انہیں بھی پتہ چلے, کل ہمیں نہیں پتہ چلنا چاہیے. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے سوال پڑھ رہا ہوں, کوشچن نمبر 5. آپ نے مجھے اس کا جواب دینا, ذرا غور سے سن لینا. کہ زبیر ایگریز ٹو کنسٹرکٹ اے بنگلو فار عبید فار 20 ملین. ٹھیک ہے, زبیر ایگریز ٹو کنسٹرکٹ اے بنگلو فار عبید فار 20 ملین آن دا کنڈیشن دیٹ پیمنٹ ول اونلی بی میڈ آفٹر منیر ان آرکیٹیکچر certifies that the bungalow has been constructed in accordance with the layout plan. ٹھیک ہے, 20 ملین میں
پارٹی اے نے بی کو کہا کہ میں آپ کا جو ہے نا بنگلہ مکمل کر دوں گا، لیکن کنڈیشن اس نے کیا لگا دی، کنٹینجنٹ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آرکیٹیکچر اس کو چیک کرے گا پلان کے مطابق. انڈر دا پروویژن آف کانٹریکٹ ایٹ 72 ڈسکرائب دا نیچر اینڈ ویلیڈیٹی آف دا ابو کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کون سا ہے؟ 1872 ایکٹ ٹھیک ہو گیا. اچھا کنڈیشن کیا لگی ہوئی ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ آرکیٹیکچر سے وہ الاؤ نہیں کرے گا کہ اس کی لے آؤٹ کے مطابق اس کی کنسٹرکشن ہو جائے تب تک یہ کنسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوگی. اچھا اگر وہ لے آؤٹ پلان کے مطابق نہیں ہے تو پھر اگر نہیں ہوگا تو ویلڈ تب ہونا وہ جو آرکیٹیکچر ہے. چلو یہ تو سوال ہو گیا. اب میرے سوال کا جواب کی میں کوشش پوچھوں کہ اگر اکارڈنگ پلان نہیں ہے پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کنسٹرکشن ہوگی جلدی اسٹارٹنگ کی جائے گی کہ لے آؤٹ کے ساتھ کنڈیشن مکان تو بن گیا نا تو کنسٹرکشن تو نہیں روکی جا سکتی نا. یہاں پہ کنسٹرکشن تو نہیں روکی جا سکتی. کنسٹرکٹ ہو گیا. ہاں اب کیا ہوگا اس میں؟ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے مان لیا دین واٹ؟ اس میں کون کس کو سو کر سکتا ہے؟ سو کر سکتے ہیں جس نے کنڈیشن لگائی تھی وہ سو کر سکتا ہے کنسٹرکٹ کرنے والے کو. تو اب اس کو پیسے پھر کم دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر تو سو کر کے کورٹ نے کر دیا کینسل تو پھر اس کے مطابق ہی ہوگا. اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ نہ کوئی لمٹ نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر آپ کورٹ کی آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. جو مرضی کورٹ اس کے لیے ڈیسائڈ کرے اسی کے مطابق کام ہوگا. اگر کورٹ اس کی فیور میں جائے گی تو اس کی فیور میں چلا جائے گا. اگر کورٹ اس کے اگینسٹ جائے گی تو اس کے اگینسٹ چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلیں اب آپ اپنا یاد کر لیں لیکن کل سے لے کے میں نے اپنا ٹائم لیجیے نا. ٹھیک ہے جی. آپ نے سربراہ کا ٹائم آج بھی جا کے ریکویسٹ کریں سے 10 منٹ دے تیار کریں تاکہ اگلے بار کوئی بھی اگر ٹیسٹ آتا ہے ان فیوچر آپ کو پتا ہے کہ 10 منٹ جو آپ نے لینے آپ ان کی جا کے لینے کا. لیکن میری کلاس کے اندر مجھے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ لوگ 10-15 منٹ ویسے لے جاتے ہیں. میرے 10-15 منٹ دونوں سمجھ جاتے ہیں اور پھر اگر 10 منٹ میڈر سے بھی دے دوں تو پھر کام تو زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں آج اب آپ اس کو کر لیں. باقی کل سے لے کر انشاءاللہ اب آج جتنا ہوا ہے میں اس کے 2 کوسچن کل لکھ کے لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس دونوں کے آپ سوال دے لیں جتنا ہوا ہے تاکہ ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ کا